Hello everyone, welcome to BioWorld. Today in this lecture we will discuss about angiosperms. Angiosperms, obviously they are flowering plants. Here that ovules are not naked. The most important thing, remember that pollen grains and ovules, they are developed in a specialized structure which is known as a flowers. And most important thing, here the seeds are enclosed by fruits. They are not naked, they are enclosed by fruits. Okay, so this is most important thing to remember. Seeds are enclosed by fruits. Now angiosperms, they are large group of plants occurring in wide range of habitat. मतलब हर एक जगह पे देखने मिलता है मोस्टली. Even their size also vary from tiny to microscopic to tall trees. Just like when we talk about smallest angiosperm. So smallest angiosperm, remember it is Wolffia globosa. Wolffia globosa. And when we talk about largest or tall angiosperm, this is eucalyptus. In Gujarati we called it is as a Nilgiri, and this eucalyptus is having above 100 meters of height. इतना लंबा होता है. These angiosperms, they are used as a food, then fodder for animals, then also they provide fuel, then medicine and other commercially important products they provide. Angiosperms, they are divided into two classes, that dicotyledon and monocotyledons. Okay, dicotyledon, according to its name, which possess two cotyledons. Two cotyledons, just like pea, bean, we have seen they are having two cotyledons. While in monocotyledon they are having one cotyledon, just like maize. We know that it is having single cotyledon. Okay, when we talk about that dicotyledon, they are having reticular venation. So they are having reticular venation. And when we talk about monocotyledon, they are having parallel venation. Now next question arises, what is venation? So arrangement of vein and wavelets on leaf. जो लीफ की सरफेस है उस पे वेन और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज अ वेनिएशन. सो जो डाइकोट प्लांट है उसमें ऐसी पूरी रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, और जब मोनोकोट की बात करें तो उसमें ऐसे पैरेलल वेनिएशन होता है. ठीक है, ओके. सेकंड थिंग, जो डाइकोट है उसकी बात करें
So dicot plants, they are having taproot system, while monocot having fibrous root system. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइकोट का कि डाइकोट प्लांट्स में ऐसे टैप रूट देखने मिलता है और जो मोनोकोट है उसमें ऐसे फाइबर्स देखने मिलते हैं. सो उसमें ऐसे फाइब्रस रूट सिस्टम होती है. जो डाइकोटिलेडन है वो ट्राइमेरस होती है, मतलब कि उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सबके नंबर 3 होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन ट्राइमेरस. डाइकोट टेट्रामेरस और पेंटामेरस, मतलब कि जो सारे पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं. 5 सेपेटल्स, 5 सेपल्स. और जो मोनोकोट है दे आर ट्राइमेरस. कैलिक्स, कोरोला मसल जो पेटल्स, सेपल्स होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है. So 2 cotyledon they are dicot and 1 cotyledon they are monocot. Okay, चलो. सो ये बेसिक याद रखना, रेटिकुलर वेनिएशन और यहाँ पे मोनोकॉट में पैरेलल वेनिएशन. ओके, नाउ थोड़ा आगे देखते हैं. तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. सो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखने जाएं तो यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन. तो मेल सेक्स ऑर्गन which is known as a stamen and female sex organ which is known as a pistil. राइट. चलो सबसे पहले हम टिपिकल फ्लावर देख लेते हैं. तो ये पेडिकल है और ये स्वॉलन पोर्शन थैलेमस जिसके ऊपर फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं. अब टिपिकल फ्लावर में देखने जाए तो मेन 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी एंड नेसेसरी. नेसेसरी में आएगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट इज स्टेमेन एंड पिस्टिल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. सो दे आर नेसेसरी. और एक्सेसरी में आएगा कैलिक्स एंड कोरोला. क्यों उसको एक्सेसरी बोला है? बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज अ एक्सेसरी पार्ट्स. राइट. कैलिक्स एंड कोरोला. एंड नेसेसरी मतलब कि दे आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. दैट्स वाई दे आर नोन एज अ नेसेसरी. एक्सेसरी में सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव होता है वो कैलिक्स, और कैलिक्स का जो बेसिक यूनिट है दैट इज नोन एज अ सेपल. सो मैनी सेपल यूनाइट एंड फॉर्म्स कैलिक्स. उसका फंक्शन क्या है कैलिक्स का? तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का है वो कैलिक्स है, मतलब कि सेपल्स. और कैलिक्स का फंक्शन क्या है? तो जब फ्लावर बर्ड कंडीशन देख सकते हो आप, आपके सामने दोनों कंडीशन रखिए, तो बर्ड कंडीशन में सबका प्रोटेक्शन करता है कैलिक्स. राइट. फिर जो सेकंड लेयर है साइकिल वो है कोरोला. एक्चुअली कोरोला इट इज़ फॉर्म्ड बाय, जैसे सेपल्स मिलके बनाते हैं कैलिक्स, वैसे ही ये होते हैं पेटल्स. सो मैनी पेटल्स यूनाइट एंड फॉर्म्स कोरोला. नाउ पेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं.
So its function is to attract insects for pollination. pollination के लिए क्या करता है, ये कलरफुल होता है तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट जो नेसेसरी साइकिल है उसमें स्टेमेंस आते हैं एंड pistil, that is we know that is androecium and gynoecium. मेल जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं एंड फीमेल दैट इज gynoecium. चलो लेट्स सी फर्स्ट gynoecium. So this is gynoecium. So this is, you can see here that broad portion, this is known as a stigma. This is hollow tube, style, and this is ovary. In ovary there is compact ovule, and in ovule, this is ovary, then this is ovule, and ovule में this is female gametophyte, that is egg cell. Now let's see that androecium, that is stamen. So this is the diagram of stamen. So this is androecium, right? Okay. So in androecium, these are stamen, that bilobed anther. In anther, pollen grains are formed. Then this is filament, एंड उसका ये जो यूनाइट होता है दैट इज कनेक्टिव. एक्चुअली इन एंथर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एंथर डाइजेशन, मतलब कि जब भी एंथर फटता है, व्हेन एंथर डाइजेशन अकर्स इट रिलीज पोलन ग्रेन्स and these pollen are transferred to gynoecium or up to pistil by a process that is known as a pollination. That pollination is done by water, wind, air, then insect, birds. ये सब पोलिनेटिंग एजेंट है जिसके थ्रू एंथर एक फ्लावर से, मतलब कि एंथर में से पोलन ग्रेन मूव्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. दैट प्रोसेस इज नोन एज अ pollination.